हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माय नेम इज डॉक्टर श्रेया जोशी एंड आई एम अ डेंटल सर्जन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट व्हाट इज ओरल हाइजीन और डेंटल हाइजीन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन डेंटल हाइजीन और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं और डिजीजेज हैं जो हमको हो सकती हैं अगर हम प्रॉपर ओरल हाइजीन या प्रॉपर ओरल केयर मेंटेन ना करें। आज का वीडियो एक प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है या पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट आर द रीजंस व्हाई पीपल आर नेग्लिजेंट टुवर्ड्स मेंटेनिंग डेंटल हाइजीन। ऐसी लापरवाही वो क्यों बरत रहे हैं। सेकंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिथ्स एंड द मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू डेंटल हाइजीन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर्स। और हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं बाय विच यू कैन मेंटेन ओरल हाइजीन और डेंटल हाइजीन। And I will also be answering some of the frequently asked questions या commonly asked questions associated with cleaning procedures। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं why people are negligent towards maintaining dental hygiene। On February 16, 2023, there was an article that was published by Times of India। और इस आर्टिकल में क्या लिखा था? इस आर्टिकल का टाइटल था Is India lagging behind in maintaining dental hygiene या oral hygiene? Yes, according to the Ministry of Health and Family Welfare, 50% of the Indians, they are having oral health care related issues. And what is the reason? Because they are following some generic treatment or they are following treatment from some untrusted sources other than the dental surgeons or the doctors, right? This was clearly mentioned in this article. I have already talked about all this कि हमें क्यों सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए और क्यों प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए and why we should not start treating ourselves in one of my previous videos. So all those who have not seen that video, please go check it out. The link is given in the description box below. Please try to understand why you have to go to the doctor and not become doctors yourself. आइए अब डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से रीजंस इस आर्टिकल में पब्लिश थे which clearly show that people are negligent towards maintaining oral hygiene. सबसे पहला रीजन, lack of awareness about oral hygiene. People do not know why it is important to maintain oral hygiene. ब्रशिंग करना, फ्लॉसिंग करना important क्यों है, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं जो हमको हो सकती हैं अगर हम हाइजीन मेंटेन ना करें तो। सेकेंड रीजन इज improper brushing and flossing techniques. People are doing brushing, flossing, hardly any Indian is doing flossing. I don't think कि कोई भी flossing कर रहा है। और जो लोग ब्रशिंग फ्लॉसिंग दोनों कर भी रहे हैं, द टेक्निक इज नॉट प्रॉपर। जितना ही ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसकी टेक्निक। ओके, एंड दैट इज व्हाट दे आर नॉट फॉलोइंग। Coming to third reason that was published was myths and misconceptions related to oral hygiene. People know only one fact कि if we are taking a lot of sugar, then it will contribute to dental caries. And it is, because of that there will be oral hygiene related issues and oral cavity related issues. No doubt sugar is one of the major contributing factors towards dental caries and biofilm formation. But there are so many other factors that have to be kept in mind, जिनके बारे में किसी को नहीं पता है. That is bacterial load, biofilm formation, plaque formation, साथ ही साथ lack of fluoride therapy. इनके बारे में किसी को भी नहीं पता है. And they think that only sugary substances वाले food हैं, carcinogenic food हैं, वो हमें नहीं लेने. Okay, this is one of the contributing factors, but there are so many other factors that are causing problems related to oral hygiene, improper oral hygiene, and the diseases related to improper oral hygiene. Coming to the fourth important reason that was published was lack of dental consultations. Yes, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, ओरल कैविटी रिलेटेड इश्यू होता है, क्या करते हैं? सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। वैसे तो इंडियंस की एक टेंडेंसी है, कोई भी बीमारी होगी, परेशानी होगी, दे विल गो टू द डॉक्टर ओनली एट द एंड स्टेज, बट दिस इज वेरी कॉमन विद दिस फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री. Until and unless the problem will become so grave, they will not approach the doctor, they will not go for dental consultations. So this is one of the biggest reason for negligence towards oral hygiene. अब बात करते हैं, ये तो सारे रीजंस हो गए नेग्लिजेंस के, लापरवाही के, क्यों ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं. अब बात करते हैं ऐसे कौन से मेथड्स हैं, स्टेप्स हैं विच यू कैन फॉलो टू मेंटेन डेंटल हाइजीन. दे आर वेरी सिंपल एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स you are not going to face any problem related to oral hygiene issues or any disease related to oral hygiene. ऐसे कौन से steps हैं? Let's discuss them. First, you have to go for regular dental consultations. Please visit your family dental surgeon or family doctor regularly.
ओके, गो फॉर कंसल्टेशंस इन एवरी 6 months और मे बी 1 year। जैसे और डिसीजेस के लिए हम एग्जामिनेशन करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो फॉर द डेंटल कंसल्टेशंस ऑल्सो। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट जो स्टेप हमें फॉलो करना है दैट इज़ प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग टेक्निक्स। जितना ही ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग करना ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है टेक्निक्स। सो टू लर्न द टेक्निक्स यू हैव टू please feel free to approach your nearest dental surgeon or your nearest doctor to learn about those techniques. You have to brush your teeth twice daily. जी हाँ, दिन में 2 बार, एक बार सुबह, एक बार रात में। Most of the Indians they are brushing their teeth in the morning but not in the night. Believe me, जितना ही important morning brush है उससे कहीं ज़्यादा important night brush है। अगर आप खाना खा के ऐसे ही सो जाते हैं, देयर इज सो मच ऑफ बैक्टीरियल लोड दैट इज वर्किंग इन द ओरल कैविटी, ओके, एंड देन बिलीव मी यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ ओरल हेल्थ केयर रिलेटेड इश्यूज इफ यू डू नॉट मेंटेन ओरल हाइजीन। सो ब्रशिंग ट्वाइस डेली with fluoridated toothpaste and a toothbrush with soft bristles. हार्ड ब्रिसल वाला टूथब्रश यूज नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रिसल वाला टूथब्रश यूज करना है, एंड यू हैव टू यूज सम फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, ओके। Now coming to third important technique, that is third important step, that is your flossing. जी हाँ, most of the Indians they are doing toothbrushing but they do not know flossing. Again, flossing is very important, technique is very important, and to learn that please approach your nearest dental surgeon or your nearest dentist. Fourth step that you have to follow, besides cleaning your teeth, okay, you also have to clean your tongue. Yes, टंग पे हमेशा एक वाइट कोटिंग आपको दिखती होगी। दैट टंग कोटिंग और वाइट कोटिंग इज अगेन अ बैक्टीरियल डेब्रीज और अ डिपॉजिट, ओके, दैट हैज टू बी रिमूव्ड। उस वाइट कोटिंग को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज टंग क्लीनर्स, ओके। प्लीज रेगुलरली यूज टंग क्लीनर्स एंड प्लीज क्लीन योर टंग प्रॉपरली। अब बात करते हैं फिफ्थ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में। ब्रशिंग भी कर ली, फ्लॉसिंग भी कर ली, टंग क्लीनर्स भी यूज कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट वी डू नॉट रिप्लेस आवर टूथब्रश एंड आवर टंग क्लीनर्स रेगुलरली। आइडियली अकॉर्डिंग टू इंडियन डेंटल एसोसिएशन हर 3 से 4 महीने में हमें अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए। एंड नाउ डेज there are so many color indicator tooth brushes that are available, जिसमें automatically जैसे ही bristles wear off होते हैं टूथब्रश का कलर चेंज हो जाता है। that is an indication कि आपको अपना टूथब्रश चेंज करना है। so if you are not having those color indicator toothbrushes, then also every 3 to 4 months जैसे ही bristles damage हो, please change your toothbrush as well as your tongue cleaners, okay. do not keep on using those old tongue cleaners and toothbrushes regularly. Then you also have to use mild mouth washes, okay. Just use those mild mouth washes regularly. It is very important in maintaining dental hygiene and oral hygiene and maintaining your mouth plaque free and bacteria free. So the sixth important step, going for oral prophylaxis. Oral prophylaxis क्या है? Oral prophylaxis है scaling, ओके, जिसको कि हम आम भाषा में कहते हैं दांतों की सफाई कराना, ओके। यू हैव टू गो फॉर ओरल प्रोफाइलैक्सिस और क्लीनिंग रेगुलरली। आइडियली जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो एवरी 6 to 12 months इट इज़ रिकमेंडेड कि हर 6 से 12 महीने में कराना चाहिए। बट अगेन यू हैव टू अप्रोच योर डॉक्टर फॉर दिस। इट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ फैक्टर्स, कैसी ओरल हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, कैसी आपकी ओरल हेल्थ केयर है, द अमाउंट ऑफ बैक्टीरियल लोड, द रेट ऑफ बायोफिल्म फॉर्मेशन इन द ओरल कैविटी। सो प्लीज अप्रोच योर डॉक्टर एंड दे विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि कितने कितने समय में यू हैव टू गो फॉर योर डेंटल क्लीनिंग, दैट इज योर ओरल प्रोफाइलैक्सिस एंड और स्केलिंग प्रोसीजर, okay. So these are about the steps that you have to follow. They are very simple, believe me, all of us can follow these procedures. इसको follow करने में कोई भी कठिनाई या problem नहीं आएगी. So please follow these steps and maintain your oral hygiene. Now I am going to discuss some of the frequently asked or commonly asked questions that are associated with dental hygiene or cleaning procedures. सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं कि हम रेगुलरली टूथ ब्रशिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, फिर भी हमें स्केलिंग कराने की या दांतों की सफाई कराने की ज़रूरत क्यों है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी ओरल कैविटी में 2 तरीके का प्लाक होता है और कैलकुलस होता है। वन इज सब जिंजाइवल जो कि गम्स के नीचे है, दूसरा है सुप्रा जिंजाइवल जो कि गम्स के ऊपर है, ओके। जो सुप्रा जिंजाइवल प्लाक है उसको हम
टूथब्रश से इजीली क्लीन कर सकते हैं, ओके। बट द सब जिंजाइवल प्लाक इन कैलकुलस इट कैन नॉट बी क्लीन विद एनी टूथब्रश, टूथपेस्ट और एनी काइंड ऑफ इंटरडेंटल ब्रश। इसको क्लीन करने के लिए यू हैव टू विजिट द डेंटल सर्जन, okay, because this can only be cleaned with the help of instruments and proper machine, okay. So that is why getting your teeth cleaned, okay, over a period of time or at some regular intervals as advised by your doctor is very very important. अब बात करते हैं एक और ऐसा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो है पेशेंट्स बहुत कॉमनली पूछते हैं कि अगर हम क्लीनिंग कराएंगे तो क्या हमारे दांत ढीले हो जाएंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्लीनिंग कराने से दांत वीक तो नहीं होते हैं, ढीले तो नहीं होते हैं, विल दे बिकम मोबाइल, विल दे बिकम वीक। द एब्सोल्यूट आंसर इज नो, ओके। ऐसा क्लीनिंग कराने से अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर टेक्निक के साथ की जाए, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू। बिलीव मी, इफ यू डू नॉट गेट क्लीनिंग डन, then in previous video also I have discussed the deposits, they will start accumulating, धीरे धीरे वो आपकी बोन को गलाना शुरू कर देंगे एंड देन योर टूथ विल बिकम मोबाइल, ओके। मोबिलिटी इसको ना कराने पे एक स्टेज पे हो सकती है, ओके, अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें, डिपॉजिट्स होते रहें और उसकी वजह से बोन में सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो बोन को गलाना शुरू कर दें, देन ऑब्वियसली योर टीथ कैन बिकम मोबाइल, नॉट बिकॉज ऑफ द क्लीनिंग प्रोसीजर। थर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं फ्रिक्वेंटली, ऑल पेशेंट्स आस्क, सो मेनी पेशेंट्स हैव आस्क्ड मी मेनी टाइम्स कि मैम क्लीनिंग कराने के बाद क्या हमको सेंसिटिविटी हो सकती है। आंसर इज येस, यू कैन हैव सेंसिटिविटी प्रॉब्लम्स, ओके, बट ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, विद इन अ वीक सबसाइड कर जाएगी। जब भी आप क्लीनिंग प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं, डॉक्टर विल ऑलवेज एडवाइस यू सम माउथ वॉश एंड सम टूथपेस्ट, ओके, एंड सम काइंड ऑफ फ्लोराइड थेरेपी। सो यू हैव टू गो फॉर दोज fluoride therapies whichever is advised by the doctor, and within a week or within a few days this problem of sensitivity will subside. It is not a permanent problem, okay, it will subside within few days. जैसे जैसे फिर से बायोफिल्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, दांत जो एक्सपोज हो गए थे वो कवर हो जाएंगे, your sensitivity problem will go. So these were some of the frequently and commonly asked questions associated with dental hygiene procedures. This was all for today's video. It was a short video. I just wanted to tell you about the simple steps that you can follow, why people are negligent, ऐसे कुछ important questions जो आप लोगों के mind में है related to cleaning procedures. I tried to answer them also. If you please found this video informative, do like, share and subscribe to my channel. It motivates me to make more such content, come up with more such informative videos for you all. आपकी एक like से, subscription से, believe me, I'll be really motivated and I will really work hard to make more such videos. Till then, स्वस्थ रहें, मस्त रहें and I'll see you guys in the next one. नमस्कार.